तो जब मैंने आपको एग्रीकल्चर बताया था तो आई हैड टोल्ड यू कि हम लोग डेफिनेशन याद नहीं करेंगे. वी विल रिमेंबर कि एक इकोनॉमी में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है. एंड जब हम लोग एक्टिविटीज की बात करेंगे तो इनको बहुत सारे तरीकों में क्लासिफाई किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी, जहां पे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज से डील करते हैं. Then we have secondary resources where we deal with somewhat of manufacturing of certain goods, right? And then we had the tertiary sector, which is basically the service sector. तो अगर agriculture primary हो गया, so when you talk about industries, the kind of image that you have in mind, by that itself you can understand that it is something which is manufacturing certain products, right? These are big industries that are actually producing certain goods or providing certain specialized services. So what is an industry? It is a secondary, it falls in the secondary sector, and it is an economic activity where we are concerned with production of goods. तो यहाँ पे हम लोग goods produce करेंगे. We are also concerned with extraction of minerals, okay? So there can be some industries that will be there in mineral extraction, and then there will be certain industries that will be providing certain services. So they can be of three kinds. That can be dealing with production of certain goods, that is manufacturing, or the extraction of minerals, or also providing certain kind of services. This is what an industry means, okay? Now giving you an example from your chapter itself, how do you get the paper that you use? If somebody is to answer me, they will tell me and they would remember that in chapter 1 of your geography, when we spoke about resources, तो एक tree की image बनी हुई थी, right? This tree, the wood, it provides us with ultimately paper, okay? Now this paper, to be there for you in a copy or in a fancy textbook format which you are using, has to go through a lot of process. It has to be converted into pulp, chemicals need to be added into it, then stamping needs to be done. For example, you are using a classmate's copy, तो वो लोग अपनी ब्रांडिंग भी करेंगे, एंड देन फाइनली यू विल हैव द टेक्स्ट बुक विच यू कैन यूज. सो देर इज एन एंटायर प्रोसेस दैट इज इन्वॉल्व्ड. अ लॉट ऑफ केमिकल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड. इसीलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं डील कर रहे हैं. यहाँ पे थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है. सो दैट इज वाई इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर सेकेंडरी सेक्टर और सेकेंडरी एक्टिविटी, एंड दैट इज वाई इट विल बी नोन एज एन इंडस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल द पेपर इंडस्ट्री. अब इंडस्ट्रीज को हम लोग कई तरीकों में क्लासिफाई कर सकते हैं. व्हाट डिड आई से? वी कैन क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन थिंग्स इनटू वेरियस टाइप्स. When you think of industries, you will not think of just one industry that exists. There will be a lot of industries that will come to your mind. So based on the raw material that is being used, what is raw material? Raw material is basically the input, one part of the input that is going into the process to give you some output. Right? So do you remember this? One kind of input that is going through certain process to give you an output. Raw material is an input in this case, and based on the kind of raw material that is being used, you can classify the industry. For example, अगर आप plant and animal products को use कर रहे हो raw material में, तो वो एक agro based industry कहलाएगी. Okay, agro based. If the size of the industry, जैसे कि अगर labor usage कम है, अगर कैपिटल कम है, राइट, अगर टेक्नोलॉजी इनकी थोड़ी सी ओल्डन है, सो देन यू विल क्लासिफाई इट एज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. एंड बेस्ड ऑन ओनरशिप यू कैन क्लासिफाई इट इनटू प्राइवेट, पब्लिक और वट एवर दैट मे बी. So based on this kind of factors, you will have to classify industries into various forms. Classification मतलब आप कई तरीकों की इंडस्ट्रीज को देखोगे. जिस तरीके की वो रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रही है, या फिर उनकी साइज अगर छोटी है या बड़ी है, उन्हें कौन ओन कर रहे हैं, राइट? इज इट इन द प्राइवेट हैंड्स और द गवर्नमेंट इज ओनिंग इट? सो बेस्ड ऑन दैट यू विल बी एबल टू क्लासिफाई द इंडस्ट्रीज इनटू वेरियस फॉर्मेट्स. सो दैट इज वन थिंग.
नाउ बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल क्या क्या इंडस्ट्रीज हो सकती हैं? सो वन इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब जैसा कि नेम से ही आप देख रहे हो, दिस इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और एग्रो बेस्ड, राइट? सो यहाँ पे क्या होगा, एग्रीकल्चर में प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स, ये हमारे रॉ मटेरियल रहेंगे। सो जस्ट ट्राई टू प्रोसेस दिस वंस एंड देन वी विल टेक इट फर्दर। अभी तक मैंने जो भी बोला एक बार देखिए। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क मी। सो बेसिकली एग्रो बेस्ड में आपके क्या क्या इंडस्ट्रीज आ जाएंगी? फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि फूड इज रिलेटेड टू योर प्लांट प्रोडक्ट्स, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट वेजिटेबल ऑयल अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री हो जाएगी। कॉटन टेक्सटाइल विल ऑल्सो बी एग्रो बेस्ड। डेयरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर में भी देखा था कि रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड यहां से हमें डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो ऑब्वियसली दिस विल बी अ पार्ट ऑफ योर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एंड लेदर, क्योंकि यहाँ पे लेदर किससे मिलते हैं? एनिमल से। टैनरीज जो होती हैं लेदर की, ये किनसे, मतलब कहाँ से यू गेट दिस लेदर? सो इट इज अवेलेबल फ्रॉम द एनिमल्स। दैट इज वाई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज दे यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज द रॉ मटेरियल्स। क्लियर? एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑल्सो क्लियर, क्योंकि जहां पे आपको समझ आ जाएगा कि प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स है तो आप डेफिनेटली उनके टाइप्स को आइडेंटिफाई कर लोगे, उनके एग्जाम्पल्स को आइडेंटिफाई कर लोगे। सो दिस इज वन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। और यहां पे हम लोग किसके बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं? रॉ मटेरियल जो यूज हो रहा है उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, मिनरल बेस्ड। मिनरल बेस्ड अब क्या हो गया? मिनरल यहाँ पे रॉ मटेरियल रहेगा। किसी भी मिनरल का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे हमने शायद चैप्टर 3 में पढ़ा था, मिनरल एंड मिनरल रिसोर्सेज। सो फ्रॉम देयर इफ यू आर आइडेंटिफाइंग एंड यूजिंग एनी काइंड ऑफ मिनरल, देन दैट विल बी अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। यहां से जो जनरली हमें आउटपुट मिलता है वो अन्य इंडस्ट्रीज में इनपुट की तरह यूज किया जाता है। सो द आउटपुट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हेल्प्स टू फीड द अदर इंडस्ट्रीज, ओके। इट फीड्स द अदर इंडस्ट्रीज, क्योंकि वो लोग इसके बेसिस पे ही अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज मेड फ्रॉम आयरन ओर। Iron ore is a mineral, okay, and this iron is then used by the railways. So what is being said? यहाँ पे iron is acting as the feeder industry. What do you mean by feeder industry? Feeder industry वो होती है जिन पे और सारी इंडस्ट्रीज फीड करती है। मतलब ये आयरन से आपकी रेलवेज इंडस्ट्री चलेंगी, ठीक है, आपके बिल्डिंग्स बनेंगे बिकॉज ऑफ दिस आयरन। सो आयरन इज योर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, बट the railways and buildings are dependent on iron from iron ore. That is why iron is acting as a feeder industry. किसी चीज को फीड करना, उनकी सर्वाइवल आपकी सर्वाइवल पे डिपेंडेंट हो। So that is like a mother feeds a child. For the child to grow, it relies on the mother to feed the child, right? Similarly, the railways and the buildings industry and other industries, automobiles, etc., they rely on the production of iron. तभी वो लोग अपनी रेलवेज को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, बिल्डिंग्स बना पाएंगे। सो आयरन इंडस्ट्री एक्ट्स एज अ फीडर इंडस्ट्री फॉर देम। क्लियर? मिनरल बेस्ड इज ऑल्सो वी आर क्लासिफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटीरियल, और यहां पे रॉ मटीरियल क्या यूज हो रहा है? मिनरल ओर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मरीन बेस्ड। तो यहां पे आपको नाम से ही पता चल जाएगा, मरीन इज एनीथिंग रिलेटेड टू वाटर, ओके। सो रॉ मटेरियल्स यहाँ पे क्या रहेंगे? सी रहेंगी, ओशियंस रहेंगे। इनमें से अगर आप कुछ भी यूज कर रहे हो तो वो आपके मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जो सी फूड वाली इंडस्ट्रीज होती है, ऑयस्टर्स, क्रैब्स एटसेट्रा, ओके, दिस विल बी योर मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। फिश ऑयल को अगर मैन्युफैक्चर करोगे, फिश स्पा इज डन, राइट? फिश ऑयल इज यूज्ड फॉर अ वेरियस एक्टिविटीज, फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। सो दिस आर ऑल मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये लोग मरीन सोर्सेस पे डिपेंड कर रहे हैं, सच एज सी एंड ओशंस। सो व्हाट हैव वी लर्न कि रॉ मटेरियल्स में हम लोग एग्रो बेस्ड देख सकते हैं, क्योंकि वो लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स पे डिपेंड कर रहे हैं। देन वी कैन सी मिनरल बेस्ड बिकॉज दे आर डिपेंडिंग ऑन मिनरल्स. Then we also have marine based because they are depending on sea and oceans. Okay.
देन वी हैव फॉरेस्ट बेस्ड, और अब यहाँ पे नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है, इट इज द रॉ मटेरियल हियर. व्हाट इज द रॉ मटेरियल हियर? एनीथिंग दैट एक्ट्स एज अ फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज द रॉ मटेरियल हियर. और यहाँ से हमें पेपर्स मिलते हैं, मेडिसिन मिलती हैं, फर्नीचर मिलते हैं, बिकॉज ट्रीज प्रोवाइड अस विथ ऑल ऑफ दिस. फॉरेस्ट प्रोवाइड us with wood, timber, etc. एंड इनके बेसिस पे जो इंडस्ट्रीज डेवलप होती है उनको फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं. तो फार्मास्यूटिकल्स इज बेसिकली मेडिसिन. ओके, सो मेडिसिन इंडस्ट्री इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट बेस्ड प्रोड्यूस, एंड दैट इज वाई इट इज अ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री. ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो अब हमने पहले तो क्या देखा, देखिए रॉ मटेरियल के बेसिस पे हम लोग रॉ मटेरियल, 1 second, yes. So raw material के basis पे we classified it into 4 types. What were the 4 types? Agro. Then we moved towards mineral. Then there was another M which was marine. And then we studied the forest based resources, right? So we classified raw material industries into 4 types. क्या क्या examples है वो भी आपको समझ आ गया. Now going to the size. सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कितना हम कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने लोग उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कितना हमें उससे आउटपुट मिल रहा है, उस साइज के बेसिस पे हम लोग उनको क्लासिफाई कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बहुत ज्यादा मशीनरी यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, और प्रोडक्शन भी हमें बहुत बल्क में मिल रहा है, हम उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, देन दैट विल नॉट बी अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होगा, सब कुछ इसमें आपका स्मॉल होगा. सो कैपिटल मतलब जो मशीनरी आप यूज कर रहे हो वो भी स्मॉल होगी, लेबर जितने लोग काम कर रहे हैं वो भी कम क्वांटिटी में रहेंगे, एंड प्रोडक्शन भी आपका थोड़ा लिमिटेड ही रहेगा. ओके, इट वोंट बी वेरी ह्यूज. These are industries that don't have enough money. Also, they don't require too much of technology. So, these are still traditional based industries. And इसीलिए हम इन्हें small scale industries कहते हैं. For example, cottage industries, जहाँ पे हैंडलूम वगैरह हो गया. Silk industry, which is silk weaving. यहाँ पे कम यूज होती है टेक्नोलॉजी की और इसीलिए स्मॉल स्केल में काम चलता है. सो दिस इज ऑल दोज रिलेटेड टू वीविंग, हैंडलूम्स. ओके, दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज विल बी अ पार्ट ऑफ योर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहेंगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लो रहेगा, नंबर ऑफ पीपल वर्किंग विल बी लो, एंड प्रोडक्शन की वॉल्यूम भी बहुत कम रहेगी. अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन हैव लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. एक मीडियम बेस्ड इंटरप्राइजेस भी होते हैं जिसे हम MSMEs कहते हैं. दिस आर मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस. ओके, मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस. तो इस टाइप के इंडस्ट्रीज भी होते हैं. इसको गवर्नमेंट बहुत बढ़ावा देती है बिकॉज दे जनरली आर सेटअप बाई पीपल हु आर नॉट वेरी रिच. एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या हो गई, जो बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, वो लोग सेटअप करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टाटाज, बिरलाज, ओके, अंबानीज, those industries set up by them, those business groups set up by them will form a part of this large scale industries. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि आप देख सक रहे हो हेवी मशीनरी यूज होगी, बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहेगा, टेक्नोलॉजी बहुत ही अपडेटेड रहेगी, यू विल बी यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन ही कुछ इस तरीके का होगा और यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगी. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन? इट इज नॉट अबाउट माई वॉल्यूम दैट मैम प्लीज इंक्रीज योर वॉल्यूम और डिक्रीज योर वॉल्यूम. वॉल्यूम हियर मीन्स क्वांटिटी. ओके, वॉल्यूम हियर मीन्स क्वांटिटी. जितना ज्यादा आप प्रोड्यूस करोगे इसका मतलब आपकी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है. सो ये वाले इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती है, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री हो गई, cars, okay, big heavy buses, all of these things are a part of your automobile industry. So automobiles कई ज्यादा अच्छे टेक्नोलॉजी के बनते हैं. You will see that very high end cars are available these days. तो इसके लिए बहुत ही अच्छी कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है, बहुत ज्यादा रुपए चाहिए होते हैं, एंड यू ऑल्सो हैव टू यूज द बेस्ट टेक्नोलॉजी. So production of automobiles, heavy kind of machineries, this will be a part of large scale industries. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कौन किसे ओन करता है उस बेसिस पे भी हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट, जैसा कि हमने देखा था प्राइवेट लैंड,
कम्युनिटी लैंड, राइट। तो प्राइवेट मतलब क्या होता है कि आप इसे इंडिविजुअली ओन कर रहे हो या फिर कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिल करके इसे ओन कर रहे हैं, ठीक है। ये प्राइवेट हैंड्स में है, इसमें लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। जस्ट अ मोमेंट। सो सॉरी। एंड पब्लिक इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि दिस आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और भी नवरत्न एंटरप्राइजेस जिसे हम कहते हैं, 9 इंडस्ट्रीज दैट आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जहां पे गवर्नमेंट की ओनरशिप रहेगी 51% या ज्यादा होनी चाहिए, तो वो पब्लिक इंडस्ट्री कहलाएगी। And private is something that is owned by a group of individuals. Okay, so public industries जहां पे government की stake होगी, and private is something that the private players are owning. This will be mainly for profit motive, and public में क्या रहेगा कि जो जो चीजें प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, सो उसमें गवर्नमेंट विल कम इन एंड दे विल ट्राई टू प्रोवाइड द थिंग्स। जॉइंट सेक्टर इज अनदर सेक्टर। अब क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होगी जहां पे कुछ पोर्शन प्राइवेट के हाथ में होंगी और कुछ पोर्शन पब्लिक के। सो क्या होगा, ये लोग जॉइंटली इसे ओन करेंगे, सो दैट इज वाई इट विल बी नोन एज द जॉइंट सेक्टर। ओके, इट विल नॉट बी ओन्ड बाय ओनली वन सेक्टर। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मारुति उद्योग लिमिटेड। सो मारुति ब्रांड के जो कार्स आपको दिखते हैं वो बेसिकली दोनों के बीच की होल्डिंग है, बोथ state and individuals. Okay, neither the government is totally controlling it nor individuals are totally controlling it. So it is basically a joint venture of both the public and the private. एक होती है कोऑपरेटिव सेक्टर। अब ये कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होती है, अगर मैं आपको क्लास में बोलती हूँ प्लीज बच्चों कोऑपरेट करो, लेट मी टीच यू, आफ्टर दैट वी विल हैव सम फन सेशन। That means I'm telling you to please keep quiet and listen to me, follow the lecture so that you are able to understand, right? So cooperate, यहाँ पे भी similarly अगर आप समझोगे तो cooperative मतलब यहाँ पे ये लोग cooperate करके कुछ लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं and they try to start up an initiative. So it is a cooperative sector जहाँ पे कुछ लोग they have come together, सबने रुपए जमा किए हैं, ठीक है, या फिर इनको फंडिंग मिली है कोई कोऑपरेटिव से, एंड देन दे हैव स्टार्टेड सम वर्क। बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसे आप अमूल के नाम से जानते हो। इसका फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये एक गुजरात के रीजन में स्टार्ट किया गया था। ओके, एंड जो आप दिल्ली वगैरह में मदर डेयरी देखते हो, मदर डेयरी के बहुत सारे आउटलेट्स रहते हैं फ्रॉम वेयर यू कैन टेक मिल्क विच इज नोन एज सुधा डेयरीज ऑल्सो। सो ये सारे आपके कोऑपरेटिव सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। मोस्ट सक्सेसफुल अमंग्स द कोऑपरेटिव सेक्टर एग्जाम्पल इज द एग्जाम्पल ऑफ अमूल बटर। अमूल के और भी कई तरीके की प्रोडक्ट्स आती हैं, राइट, अमूल कूल मिल्क, ओके, एंड चीज एटसेट्रा। ओके, सो देर आर अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि एक कोऑपरेटिव ने स्टार्ट किया था, एंड दैट कोऑपरेटिव इज बेसिकली अमूल। सो आप इस इंडस्ट्री को ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इस कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो कि वो एक कोऑपरेटिव सेक्टर में बिलोंग करती है, क्योंकि इट इज नॉट ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ना ही गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल है। कुछ लोग इकट्ठा होकर के इसे ओन किए हैं और इसे रन कर रहे हैं। सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर। नाउ वी हैव लर्न्ड अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री क्या होती है वो देख लिया, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री देख ली, ठीक है, इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी ये भी समझ लिया, वेरियस एग्जाम्पल्स देख लिए। अब ये इंडस्ट्री की लोकेशन के क्या रीजंस होते हैं। कभी कभी आप देखोगे कुछ इंडस्ट्रीज एक स्पेसिफिक एरिया में ज्यादा लोकेटेड है, while the rest of the crowd does not have any industries. Okay, so that will not, that will give you a reason as to what are the factors for location of industries. So factors for location of industries, एक हो जाती है आपकी availability of raw material, एक हो जाता है land कितना है, water कितना है, third is क्या वहां पे cheap labor available है कि नहीं, and fourth is what kind of capital you have.
सो अब ये मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि देखिए हर इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल एक कोल इंडस्ट्री है, तो इट विल रिक्वायर वेरियस थिंग्स एंड फर्स्ट थिंग इट विल रिक्वायर इज कोल। तो जब हमने मिनरल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि झरिया, रानीगंज, बोकारो, ये सारे रीजन्स हैं इंडिया में जहाँ पे कोल देखने को मिलता है। सो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे रॉ मटेरियल है तो ज़्यादातर कोल की इंडस्ट्रीज यहीं मिलेंगी। लैंड वहां पे कितना है, क्योंकि यूजर्स ऑफ लैंड में वी हैव स्टडीड दैट वन ऑफ द यूजर्स ऑफ लैंड इज टू सेट अप इंडस्ट्रीज। अगर लैंड नहीं रहेगा तो आप इंडस्ट्रीज कैसे सेटअप करोगे? वाटर अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी तो इंडस्ट्रीज कैसे रन करेंगी, बिकॉज इंडस्ट्रीज रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर। इफ देर इज नो लेबर, who will go to the coal fields, extract the coal, transport the coal, etc. So labor, population has to be there. आप बहुत ही सेक्लूडेड एरिया में जाकर के एक इंडस्ट्री नहीं सेटअप कर सकते हो, बिकॉज आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी. सो लेबर हैज टू बी देयर. अपार्ट फ्रॉम दैट कैपिटल, इफ यू हैव मोर मनी देन यू कैन सेट अप अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री. इफ यू डोंट हैव इनफ कैपिटल तो आप मशीनरी बेस्ड इंडस्ट्रीज नहीं सेटअप कर पाओगे, या फिर आप बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज सेंटर्स पे नहीं सेटअप कर पाओगे. You have to choose different small spots. So these are the factors that influence कि एक इंडस्ट्री कहाँ पे सेटअप होगी. अब आप कोल की इंडस्ट्री को उस रीजन में ले जाओगे, नॉर्थ ईस्ट रीजन में ले जाओगे फॉर एग्जाम्पल, वेयर देर इज नथिंग, और यू विल टेक इट टू जम्मू एंड कश्मीर, तो फिर इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, क्योंकि आपको तो उतनी कॉस्टिंग लग जाएगी रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए. If there is no labor, then you will have to hire people from outside. That will also increase your cost of production. तो फिर आप बेचोगे क्या, and how will you get the profit? So that is why there are certain factors for location of industries, and these are the factors. What are the other factors? देखिए कभी कभी क्या होता है, अब जैसे आपने बोला या फिर आपने समझा, मैंने बोला कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स बन जाते हैं, क्योंकि एक इंडस्ट्री की ग्रोथ की वजह से वहां पे और कई सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, तो इससे क्या होता है, एक स्पेसिफिक रीजन डेवलप कर जाता है. बट बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड रीजन्स हैं जहां पे कोई इंडस्ट्रीज नहीं होती. सो व्हाट डज द गवर्नमेंट डू? गवर्नमेंट ऑब्वियसली कैन नॉट लीव दो स्पॉट्स ऐसे ही, उनको तो वो वाले एरियाज को भी डेवलप करने होंगे. सो इट सेज दैट ओके, आई विल गिव यू इलेक्ट्रिसिटी एट वेरी लो रेट, यू सेटअप द इंडस्ट्री. अगर आप बैकवर्ड एरिया में सेटअप करोगे तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट कहती है कि मैं आपको सब्सिडाइज्ड पावर दिलवा दूंगा, तो आपको यहाँ पे सेटअप करनी होगी इंडस्ट्री. आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैं बेयर कर लूंगा, तो यू हैव टू सेटअप द इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन्स. इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ फैसिलिटीज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सो प्लीज सेटअप रीजन्स, इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड रीजन्स. तो इससे क्या समझ आ रहा है कि कभी कभी कुछ इंसेंटिव्स दी जाती हैं for this industrialists to set up industries in the backward regions. And ये किस तरीके की incentives होती हैं? इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज्ड रेट में मिल जाती है, सब्सिडाइज्ड मतलब कम रेट्स में. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को गवर्नमेंट बेयर कर लेती है. Government also provides them with certain kind of buildings and infrastructure that they would require, so that the backward areas of the country are also able to develop. इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिडक्शन मतलब रिड्यूस करना, रिडक्शन ऑफ रीजनल इनइक्वालिटीज. ठीक है, रीजन की मीनिंग क्या होती है? रीजन इज बेसिकली अ सर्टेन एरिया. तो अब कुछ एरिया बहुत डेवलप है, फॉर एग्जाम्पल मुंबई हो गया, एंड अब कोई एक गांव को ले लो, ठीक है, एनी स्मॉल टाउन, सो दैट विल बी वेरी बैकवर्ड. सो अब दिस इज वेरी हाई एंड दिस इज वेरी बैकवर्ड अ विलेज. तो इसमें क्या हो गया, रीजनल इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा हो गई. तो गवर्नमेंट ट्राइज टू फॉलो दिस स्टेप्स ताकि ये रीजनल इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाए और थोड़ा बहुत हम लोग इक्वालिटी की तरफ बढ़ जाए. सो गवर्नमेंट ट्राइज टू डेवलप बैकवर्ड एरियाज बाय फॉलोइंग स्टेप्स. इफ दिस ऑप्शंस आर देयर, ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ कमिंग टू व्हाट इज इंडस्ट्रियल सिस्टम. जैसे कि जब हमने एग्रीकल्चर पढ़ा था तो मैंने बहुत क्लियरली आपको फार्म सिस्टम के बारे में पढ़ाया था. एक सिस्टम क्या होता है, मैंने आपको उसका भी एग्जाम्पल दिया था, दैट वी आर यूजिंग एनसीईआरटी एज इनपुट. द प्रोसेस इज टीचिंग, आई एम ट्राइंग टू टीच यू. द प्रोसेस इज ऑल्सो लर्निंग, यू आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम मी.
and the output is the mark sheet that we are getting, the kind of people that you are going to become tomorrow. That is the system. क्योंकि एक सिस्टम में इनपुट्स होते हैं, प्रोसेस होता है और आउटपुट होता है. सिमिलरली आप इसको इंडस्ट्री के तरीकों में देखो कि इंडस्ट्री में भी कुछ इनपुट्स रिक्वायर होंगे, कुछ प्रोसेसेस आपको करने होंगे ताकि आपको एक आउटपुट मिल सके. सो दिस इज व्हाट इज द इंडस्ट्रियल सिस्टम. अब इंडस्ट्रियल सिस्टम में इनपुट्स क्या क्या होते हैं? इनपुट्स विल रिमेन द सेम. रॉ मटेरियल चाहिए होगी, लेबर यू विल रिक्वायर, दैट इज पीपल. यू विल ऑल्सो रिक्वायर लैंड. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज चाहिए होगी ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सको गुड्स को. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियसली. इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? लाइक यू विल रिक्वायर अ स्पेस जहां पे आपके पास प्रॉपर बिल्डअप फैसिलिटीज होए ताकि यू कैन कैरी आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस. और आउटपुट आपका क्या रहेगा? आउटपुट आपके फिनिश प्रोडक्ट्स रहेंगे और जो आप इनकम अर्न करोगे वो आपकी आउटपुट हो जाएगी. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियल सिस्टम. Now, what are the various industrial regions in the world? Region मतलब spaces, areas. Okay? जैसा कि अभी बताया, regional inequalities को कम करना है. क्या करना है? Regional inequalities को कम करना है. जो regions developed है उनको तो developed होने दीजिए, but जहाँ पे कुछ नहीं है उनको भी develop कीजिए. इससे आपकी inequality दोनों areas में कम हो जाएगी. So, what are the important industrial regions? We are going to look at that. अब ये इंडस्ट्रियल रीजन्स होते कैसे हैं? कैसे कोई एक रीजन इंडस्ट्रियल रीजन कहलाने लग जाता है? सो व्हाट हैपेंस इज, कभी कभी एक इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप हो गई. फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है अन्य इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि दिस इज द फीडर इंडस्ट्री, राइट? सो नाउ व्हाट हैपेंस, क्योंकि यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आ गई तो आसपास और कई सारी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी क्योंकि इनको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से बेनिफिट्स मिल जाएंगे. तो सब इंडस्ट्रीज अब अपने दे विल शेयर बेनिफिट्स अमंगस्ट ईच अदर. बेनिफिट्स विल बी शेयर्ड, तो कॉस्ट रिडक्शन भी हो जाता है, प्रॉक्सिमिटी हो जाती है. व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉक्सिमिटी? योर हाउस एंड माई होम इज नियर. Okay, you can come to my home easily, I can go to your home easily. So we can make learning very simple. But if the place is very far away, if your school is very far away, तो आपकी cost increase हो जाएगी, you will have transport, आप ज़्यादा tired होगे. So what happens is, it will be little difficult. And here what will happen, if industries are close to each other, they are in close proximity, मतलब आस पास located है, तो वो लोग अपनी एक दूसरे की benefit share कर सकते हैं. सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल रीजन्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? टेम्परेट एरियाज में. ओके, नॉट ट्रॉपिकल, जहां पे टेम्परेट क्लाइमेट हो वहां पे देखने को मिलेंगे. सी पोर्ट्स के नजदीक देखने को मिलेंगे, बिकॉज इंडस्ट्रीज दे रिलाई ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स. तो अगर सी पोर्ट्स रहेंगे तो इट इज वेरी इजी टू एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट्स. ऑल्सो देर इज गुड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. एंड कोल एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो इंडस्ट्रीज को चाहिए होता है. So they will try to set up near the coal fields, okay, so that they can obtain the coal from nearby areas. Based on these factors, कोई एक region industrial region में classify हो जाता है. Major industrial regions of India क्या क्या हो सकते हैं? एक बार इस मैप को देखिए एंड जल्दी से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है. एक है मुंबई पुणे क्लस्टर. So why is Mumbai Pune cluster an industrial region of India? Can you think of certain examples? Why is Mumbai Pune cluster an industrial region of India? Because Mumbai has a lot of industrialists. यहाँ पे काफी स्कोप है. The weather here is also suitable. Location of market with nearby areas is also very good. तो ये एक क्लस्टर में डेवलप कर गया. आफ्टर दैट यू हैव बैंगलोर तमिलनाडु रीजन, क्योंकि यहाँ पे सर्विस सेक्टर बहुत अच्छी है. आज जॉब्स की आप बात करोगे, आईटी जॉब्स की आप बात करोगे, तो बैंगलोर के बिना देर आर वेरी फ्यू ऑप्शंस इन इंडिया एंड देर आर नो सच गुड ऑप्शंस देन बैंगलोर. हुगली बेसिन, क्योंकि यहाँ पे वाटर, ट्रांसपोर्ट, ऑल ऑफ दिस इज वेरी गुड. अहमदाबाद, दिस इज फॉर क्लॉथ इंडस्ट्री. जब आप अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत ये सब की बात करोगे तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप्ड है. एंड एक है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू. ये एक बहुत ही मिनरल रिच रीजन है झारखंड का, मिनरल रिच, ओके, झारखंड में. सो दैट इज वाई दिस ऑल प्लेसेस, बिकॉज ऑफ देयर एडवांटेजेस, दे हैव बिकम
Major industrial regions of India. What are the others? विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, ये आपका आंध्र प्रदेश वाला रीजन हो गया, ठीक है. विजाग पोर्ट, दिस वॉज फेमस सिंस एंशियंट टाइम्स, तो ये आज तक चल रहा है. गुड़गांव, दिल्ली, मीरठ, अगेन गुड़गांव हैज द DLF. गुड़गांव हैज अ लॉट ऑफ जॉब फैसिलिटीज. ओके, टेक्नोलॉजिकल हब बन गया है ये. दिल्ली इज ऑल्सो द कैपिटल. मीरठ भी इसी तरीके से डेवलप हो गया. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, कुछ समय पहले गुड़गांव में देयर वाज नथिंग. विद द दिल्ली बीइंग कैपिटल एंड दिल्लीज डेवलपमेंट, गुड़गांव ऑल्सो स्टार्टेड डेवलपिंग. अब ये जब रीजन डेवलप हुआ तो इन एंड अराउंड, जैसे कि नोएडा रीजन ऑफ यूपी, यहाँ पे भी कई इंडस्ट्रीज आ गई, कई सारी कंपनीज आ गई. सो दिस इज हाउ वन इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अनदर. एंड जब बहुत सारी एक जगह आ जाती है तो वो एक प्रॉपर रीजन में कल्मिनेट हो जाती है. कोल्लम, थिरुवनंतपुरम, दिस इज केरला एरिया, दिस इज ऑल्सो एन इंडस्ट्रियल रीजन. यू कैन हैव अ लुक एट द मैप सो दैट यू हैव बेटर आइडिया. और वर्ल्ड्स की अब मेजर इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? एक आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई ऑब्वियसली, क्योंकि ये फीडर इंडस्ट्री है. सारे इंडस्ट्रीज की डिपेंडेंस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे है, बिकॉज आयरन इज समथिंग दैट वी यूज एवरी डे. द सेफ्टी पिन्स दैट यू यूज, एक छोटी से छोटी चीज, नीडल से लेकर के रेलवेज, ओके, एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सब में आयरन की जरूरत पड़ती है. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज. Then you have textile industry, the clothing industry, okay, and you have information technology. यहाँ पे एक बहुत ही गौर करने वाली बात क्या है कि ये एक emerging industry है. What do you mean by emerging industry? इसका मतलब ये लोग sunrise industries है, ये अभी उभर के आ रही हैं. ये पहले इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं थी, बट धीरे धीरे इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं. सो दिस आर एमर्जिंग, ओके, दिस आर कमिंग अप एंड दिस आर गोइंग टू बी द डिमांड ऑफ टुमारो. सच एज IT हो गई. और कौन सी इंडस्ट्री हो सकती है इसमें? कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग? एनी अदर काइंड ऑफ इंटेलिजेंस बेस्ड सर्विसेज विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ एमर्जिंग इंडस्ट्री. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, रोबोटिक्स हो गए, ये सारी आपकी एमर्जिंग इंडस्ट्रीज में आएंगी. इसे हम सनराइज इंडस्ट्रीज भी कहते हैं. सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सनराइज इंडस्ट्री? यू शुड नो. एंड विच इंडस्ट्रीज आर रेफर्ड टू एज सनराइज इंडस्ट्रीज? एमर्जिंग इंडस्ट्रीज. दे आर गोइंग टू बी द फ्यूचर generation industries. They are going to have a lot of demand in the future. Now coming to iron and steel industry, जैसा कि मैंने बताया, it is a feeder industry क्योंकि ये हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है बाकी इंडस्ट्रीज के लिए. इसमें काफी सारे इनपुट्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, सच एज स्मेल्टिंग. अब ये स्मेल्टिंग क्या होता है? इसमें एक प्रोसेस होता है जहां पे आप हीट करते हो आयरन ओर को and then you break it into certain products, okay, and then you also receive outputs. तो इस तरीके के कई सारे प्रोसेसेस होते हैं, इसीलिए हम इसे एक इंडस्ट्रियल सिस्टम कहते हैं. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में क्या क्या इनपुट्स की जरूरत होती है? ऑब्वियसली जैसा कि नेम है तो आयरन ओर, कोल की भी जरूरत होती है, ऑल्सो लाइमस्टोन. इससे क्या होता है? बहुत तरीके के अलॉयज बन जाते हैं. अलॉयज इज मिक्सचर ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस जिससे आपका कोई मेटल बन जाता है. ओके, अलॉन्ग विथ लेबर चाहिए होगी, कैपिटल चाहिए होगा, साइट मतलब प्लेस जिसे हम लैंड भी कहते हैं, और उसके ऊपर कुछ तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होगा. प्रोसेस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल स्मेल्टिंग. इसके अलावा फर्नेसिंग होती है और भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं. बड़े बड़े ब्लास्ट फर्नेसेस में इन्हें डाला जाता है और ब्लास्ट किया जाता है. Then it converts into something else. So this is the process in the iron and steel industry. आउटपुट क्या होता है? आउटपुट हमें आयरन एंड स्टील के फॉर्मेट में मिलता है और इस फॉर्मेट को, इस आउटपुट को अन्य इंडस्ट्रीज यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल. तो उनकी डिपेंडेंस इस पे है क्योंकि रॉ मटेरियल के बिना तो कोई इंडस्ट्री आगे बढ़ ही नहीं सकती. So iron and steel serves as the raw material for those industries, and that is why iron and steel industry is known as the backbone of other modern industries. Backbone क्या होता है? If you don't have a backbone, you can't stand straight, right? So this is the backbone. This helps the other industries to survive. If the iron and steel industry is not there, many industries will collapse. Many industries will not be able to carry out their work.
सो दिस इज द मीनिंग ऑफ बीइंग अ बैकबोन ऑफ समथिंग. इट इज सो बिकॉज वेरियस थिंग्स, अब जैसे कि आप जहाज देख रहे हो, ट्रेन्स देख रहे हो, ट्रक्स देख रहे हो, बड़े बड़े ऑटोज देख रहे हो, ये सब स्टील से बनते हैं. सो इज इट रॉन्ग टू से दैट स्टील इज द बैकबोन? नो, इट इज नॉट रॉन्ग. डेफिनेटली इट इज द बैकबोन, तभी तो ये सारी चीजें बन के आई हैं. अगर स्टील नहीं रहेगा तो यू विल नॉट हैव दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज ऑल्सो. सो एवरीथिंग विल स्टॉप बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन स्टील. Now, how is the location of industry decided? So, before 1800 AD, क्या हुआ था? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वॉज लोकेटेड. कहाँ पे लोकेट किया जाती थी? जहाँ पे रॉ मटेरियल्स मिल रहा हो, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही हो, एंड वेर यू वर हैविंग गुड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर. बट दिस इज इन द एंशियंट डेज. क्योंकि तब क्या था? तब ट्रांसपोर्ट इतना डेवलप नहीं था. तब लोगों के पास इजी एक्सेस नहीं थी, इजी कम्युनिकेशंस नहीं थी. सो दैट इज वाई सॉरी, where there were raw materials, it was very important to set up the industries there itself. Okay, but now this is not the case. तो अब क्या हो गया है? Let's see that. Okay, after 1950 क्या हो गया? वहां पे हम लोग लोकेट करने लग गए जहां पे फ्लैट लैंड हो, सी पोर्ट्स हो, ताकि हम लोग ज्यादातर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके. सो व्हाट हैपेंड? द डिमांड्स चेंज्ड. व्हाट हैपेंड? द डिमांड्स चेंज्ड. आज क्या होता था? पहले क्या होता था? वी डिड नॉट बिलीव इन ऑनलाइन एजुकेशन एट ऑल. व्हाई? बिकॉज वी फेल्ट दैट देयर इज नथिंग दैट कैन बी बेटर देन क्लासरूम लर्निंग. इवन टुडे वी बिलीव इन दैट. नथिंग कैन सब्सटीट्यूट अ क्लासरूम्स लर्निंग फॉर अ चाइल्ड. बट स्टिल अब डिमांड्स चेंज हुई तो अब ऑनलाइन इंडस्ट्री फ्लरिश हुई. ऑनलाइन पीपल स्टार्टेड यूजिंग एजुकेशन एज अ मीन्स टू ट्राई एंड रीच आउट टू वेरियस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स. ऑल्सो इट बिकेम ईजियर फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि अब वो लोग कहीं भी बैठे एट देयर कन्वीनियंस दे आर एबल टू लर्न. दे आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू टाइम और एनी अदर काइंड ऑफ लोकेशन, राइट? So this kind of things they change with the priorities of time or with the changes in time. पहले जबकि हम लोग इस बेसिस पे करते थे कि जहां पे रॉ मटेरियल्स होगा वहीं पे सेटअप करेंगे, बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डू एनीथिंग एल्स, राइट? बट नाउ व्हाट हैपेंड? दैट वी स्टार्टेड चूजिंग दोज एरियाज जहां से हमारे लिए एक्सपोर्ट ईजी हो जाए. क्योंकि अब हमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करना था. रॉ मटेरियल तो हम कहीं और से भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. सो दिस वाज बेसिकली द क्राइटेरिया. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ फैक्टर्स लोकेशन इज डिसाइडेड. अब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कहां देखने को मिलती है? जर्मनी, अमेरिका, चाइना, जापान एंड रशिया. दिस आर द 5 कंट्रीज यू नीड टू रिमेंबर. और इंडिया में कहां देखने को मिलती है? सो दिस इज बेसिकली द रीजन. मैक्सिमम इंडस्ट्रीज आपको यहां देखने मिलेगी. भिलाई इन छत्तीसगढ़, बर्नपुर, दुर्गापुर बंगाल, राउरकेला ओडिशा, जमशेदपुर ऑल्सो in Jharkhand. Okay, so these are the areas where you have most of the iron and steel industries. अब ये क्यों है ये भी बताएंगे. बोकारो is also another place. भद्रावती, देखिए ये सारे जो भी आप देख रहे हैं ना, सलेम इन तमिलनाडु, भद्रावती इज देयर, विजयनगर इज देयर इन आंध्र प्रदेश, ओके, विशाखापट्टनम and this area in the east. So this kind of areas they have the most concentration of iron and steel industry. Why is it so? It is because यहाँ पे बहुत सारी चीजों की अवेलेबिलिटी मिलती है. एक एग्जाम्पल जो हम देखेंगे वो है जमशेदपुर का. अब जमशेदपुर में क्या था? देखिए 1947 ये वो वाला टाइम पीरियड है जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था. तो इंडिपेंडेंस के पहले क्या था? इंडिपेंडेंस के पहले देयर वाज ओनली 1 आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया. इमेजिन इतनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री बट सिर्फ एक ही प्लांट था, एंड दिस वाज टिस्को. ये प्राइवेटली ओन्ड था. इट वाज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे आप मिस्टर रतन टाटा का सुने होंगे. सो ही इज द मैन बिहाइंड दिस. ये 1907 में जमशेदपुर में क्या हुआ था? जमशेदपुर को पहले साक्षी वाले नेम से जाना जाता था. आफ्टर दैट इट्स नेम वाज चेंज टू जमशेदपुर. दिस प्लेस इज एट द कॉन्फ्लुएंस. कॉन्फ्लुएंस मतलब मीटिंग पॉइंट. किनकी मीटिंग पॉइंट? एक सुवर्ण रेखा रिवर है और एक खरकाई रिवर है. इन दोनों मीटिंग पॉइंट पे इसको कन्फ्लुएंस कहते हैं. यहाँ पे जमशेदपुर लोकेटेड था. इस लोकेशन के वजह से यहाँ पे ये इंडस्ट्री फ्लरिश हुई थी.
ठीक है। और जमशेदपुर क्यों चूज किया गया था? क्योंकि ये 32 किलोमीटर बस दूर था। कहाँ से? कालीमती स्टेशन से। कालीमती स्टेशन इज वेरी नियर टू योर बंगाल एंड महाराष्ट्र रेलवे लाइन। तो इससे क्या होता है? इससे आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इजी हो जाता, ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स हो जाता। ठीक है। इंडस्ट्री हम लोग क्या चूज करते हैं? ये भी तो चूज करते हैं ना कि हमारे प्रोडक्ट्स इजिली सेल हो जाए। सो हैविंग अ मार्केट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. So this Bengal area, it served as a good market and that is why Jamshedpur was a good choice. उसके अलावा 2 रिवर्स थी यहाँ पे मेजर, तो वो भी एक अच्छी चॉइस थी. बाकी जोग्राफिकल लोकेशंस भी जमशेदपुर के लिए फेवरेबल थे क्योंकि यहाँ पे बहुत ही क्लोजनेस में सारे रॉ मटेरियल्स मिलते थे, सच एज आयरन ओर, मैंगनीज, डोलोमिट, लाइमस्टोन. ये सब उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जो कि हमने पढ़ा भिलाई या फिर उड़ीसा में राउरकेला, ये सब जगह से मिल जाते थे. एंड कोलकाता एक मार्केट की तरह सर्व करता था. दैट इज वाई जमशेदपुर वॉज अ गुड ऑप्शन. टिस्को प्लांट ऑफ जमशेदपुर. इसके बाद क्या हुआ? बहुत सारे दूसरे इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ गए, सच एज केमिकल इंडस्ट्रीज, लोकोमोटिव इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, मशीनरी की इंडस्ट्रीज भी आ गई, केबल, वायर, ये सारी चीजें डेवलप कर गई. सो इसी से हमें ये पता चल गया कि एक इंडस्ट्री जो कि एक फीडर इंडस्ट्री के नेम से हम जानते हैं या फिर बैकबोन इंडस्ट्री कह रहे हैं, ये ओपन कर दी सारे डोर्स टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया. आज के डेट में अगर आप जाओगे जमशेदपुर, इट इज अ स्मॉल प्लेस बट इट इज अ वेरी रिच प्लेस. ओके, it has a lot of companies also. So it is because of all these factors that Jamshedpur has been able to grow. This is an example of India. अब हम लोग कहाँ की बात करेंगे? Now we will talk about the iron and steel industry in the world. One important center. So one important center in the world is this, which is Pittsburgh. Pittsburgh is an important steel city of USA. तो ये क्यों है? क्योंकि कोल, आयरन ओर जो कि रॉ मटेरियल्स है, ये माइनसोटा आयरन माइन से मिल जाती है, विच इज वेरी नियर टू दिस प्लेस. ओके, इसके अलावा यहाँ पे एक ग्रेट लेक्स वाटरवे है. अब ये ग्रेट लेक्स में 5 रिवर्स हैं बेसिकली. ठीक है, तो ये जो वाटरवे है, एक तो ये शिपिंग रूट के लिए अवेलेबल करवा देता है चीजों को, एंड सेकेंड इज यहाँ से पानी मिल जाता है इंडस्ट्रीज के लिए. तो इसके वजह से इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती है. मान लो आपने इंडस्ट्री सेटअप कर ली, अब वहां पे पानी ही नहीं मिल रहा है, व्हाट विल यू बी एबल टू प्रोड्यूस? नथिंग, राइट? सो पिट्सबर्ग हैज गेन्ड इंपॉर्टेंस बिकॉज रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, ऑल्सो यहाँ पे वाटरवेज है फॉर ट्रांसपोर्ट. थर्ड थिंग इज वाटर अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो गुड. अब ग्रेट लेक्स कौन कौन से हैं? तो 5 नेम्स है, ये याद कर लेना. सुपीरियर, लेक हुरॉन, लेक ओंटेरियो, लेक मिशिगन एंड लेक ईरी. ओके, इनमें से सबसे बड़ी लेक जो है, सबसे लार्जेस्ट लेक जो है, दैट इज लेक सुपीरियर. दिस इज द रीजन वाई पिट्सबर्ग हैज बिकम द आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ यूएसए. इसके अलावा बहुत सारी रिवर्स है, लाइक ओहियो, मोनोगाहेला. ओके, प्लीज जस्ट रिमेंबर द नेम्स, दे आर लिटिल वियर्ड, एंड एलिगेनी. तो ये सारे जो रिवर्स है, यहाँ से वाटर मिल जाता है पिट्सबर्ग को, तो इसके लिए इजी हो जाती है इस इंडस्ट्री के लिए. और जो फाइनल प्रोडक्ट स्टील रहता है, इसको इस शिपिंग रूट के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. तो इससे आपके इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ थोड़ा फीजिबल हो जाता है. दैट इज वाई पिट्सबर्ग हैज एक्सेल्ड. ऐसा नहीं है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आप कहीं और भी डेवलप कर सकते हो, बट इफ दिस फैक्टर्स आर नॉट देयर, इट माइट नॉट बी एबल टू एक्सेल. ओके, सो आपको कोई भी चीज सेटअप करनी है तो आपको उस मार्केट एरिया को स्टडी करना पड़ेगा. कल आप में से कुछ लोग जाकर के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे. सो यू हैव टू कीप दिस फैक्टर्स इन माइंड व्हेन यू डिसाइड. यू हैव टू डू अ मार्केट स्टडी कि यहाँ पे क्या इस चीज की मार्केट है. अगर मैं इसे सेटअप करता हूं तो व्हाट आर द कॉस्ट, हाउ कैन आई रिड्यूस माई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट? दिस इज व्हाट द प्रोफेशनल्स दे डू एंड दे गेट पेड फॉर इट. So you have to analyze these factors so that your company, your organization, your industry, it runs on the path of success. Okay? Now we will talk about cotton textile industry. तो बहुत हो गई बात आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की, बोर हो गए होगे अब आप लोग, बट क्या करें, वी हैव टू रीड दिस, इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आप ऐसे करोगे, कुछ वीडियोस देखते रहना बीच में, राइट? एंड ट्राई टू रिमेंबर द नेम्स.
कुछ क्वेरीज होती है तो कीप सर्चिंग, keep trying to find out various other things. Okay, that will give you a extra interest that you might get in the subject. Now we will talk about cotton textile industry. As I told you, तो cotton textile ये एक सबसे पुरानी इंडस्ट्री है वर्ल्ड में. जब इंडिया भी इंडिपेंडेंट नहीं था, when we were under ब्रिटिशर्स, उसके पहले when we were independent, जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, हमारी ये क्लॉथ वाली इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी, क्योंकि हमारे हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीलूम ये सब बहुत अच्छे थे. ओके, बट आफ्टर द ब्रिटिशर्स केम स्लोली पावर लूम, ये सारी चीजें आ गई. बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो गई जो इंडिया नहीं कर पाया. ओके, बिकॉज ऑफ दिस हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री डाई आउट हो गई. इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? कॉटन, सिल्क, वुल, जूट, फ्लैक्स, क्योंकि ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल बनाने के लिए यूज किए जाते हैं. 18th सेंचुरी क्या हुआ था? पहले तो व्हील्स और लूम्स पे बनाया जाता था कॉटन क्लोथ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पावर लूम्स ने रिप्लेस कर दिया. जैसे कि मैंने बोला, बहुत ज्यादा मैकेनाइजेशन के साथ क्या होता है, जो पुरानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होती है वो अब नहीं यूज की जाती, और ये थोड़ा सा इंडस्ट्री को मार दे देती है. ओके, सो यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है ये कोप अप नहीं कर पाई और ये थोड़ी सी पीछे चली गई. बट जिसने मैकेनाइजेशन एस्टैब्लिश कर लिया, जो उसे फॉलो कर पाए, वो लोग उसकी बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली उठा लिए. सो दिस वॉज ब्रिटेन विच ब्रॉट अबाउट द यूज ऑफ पावर लूम, एंड उसके बाद ये और जगह में फैल गया. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिफोर ब्रिटिश रूल, इंडियन टेक्सटाइल हैड अ वेरी गुड पास्ट. इनफैक्ट जो इंडियन टेक्सटाइल थी ये बहुत ज्यादा डिमांड में थी ऑल ओवर द वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल, मसलिन्स ऑफ ढाका, ये इतना सॉफ्ट कपड़ा होता है, बिल्कुल मलमल सा कपड़ा होता है, विच इज वेरी हाईली वैल्यूड ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसके अलावा मसूलीपट्टनम एरिया के एक कपड़े को चिंजस कहते थे. कैलिकोज ऑफ कैलिकट एंड गोल्ड रॉट कॉटन, एक जरी वाले बॉर्डर की कॉटन होती थी, बरहनपुर की, सूरत की, वडोदरा की. सो ये सारे जो टेक्सटाइल्स थे इंडिया में, ये अपनी क्वालिटी और डिजाइन के लिए वर्ल्ड फेमस थे. इवन टुडे अ लॉट ऑफ इंडियन वर्क इज अप्रिशिएटेड आउटसाइड. बट मोस्टली जब ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडियन इकोनॉमी को कैप्चर किया, तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज थी ये डाई आउट होने लगी. धीरे धीरे ये वापस आई पिक्चर में. But this is how the story of the cotton textile industry was. The first industry was actually established at Kolkata. अगर आप ऐसे ही देखो तो ठीक है, फोर्ट ग्लोस्टर या कुछ था. एंड उसके बाद अगर मैकेनाइज्ड वाली की बात करो तो ये मुंबई में आई थी, लेकिन अदरवाइज फर्स्ट इंडस्ट्री इट वाज सेट अप एट कोलकाता. हैंड वुमेन टेक्सटाइल कॉस्टली भी होती थी एंड इट वाज नॉट एबल टू कम्पीट विद द टेक्सटाइल्स ऑफ द वेस्ट. तो जो ब्रिटिशर्स ने पावर लूम्स ले लिए थे, उससे उनकी प्रोडक्शन चीपर होती थी, और जो हैंड वुमेन टेक्सटाइल जो इंडिया में बनाया जा रहा था वो बहुत ही मेहनत का काम था और बहुत ही एक्सपेंसिव भी था प्रोड्यूसर्स के लिए. सो दैट इज वाई इट वाज नॉट एबल टू कम्पीट, क्योंकि जो सस्ता मिल रहा है लोग उसे ही खरीद रहे थे. फॉर एग्जाम्पल, ऑफ लेट वी आर सीइंग बैन चाइनीज प्रोडक्ट्स. बट चाइना ने इतना पेनिट्रेट कर लिया है हमारी मार्केट को बाय प्रोवाइडिंग अस लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स दैट वी आर नॉट एबल टू बॉयकॉट इट कंप्लीटली, राइट? सो दैट वाज द केस. कमिंग ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, सो फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड मतलब मशीन वाली टेक्सटाइल मिल मुंबई में स्टैब्लिश हुई थी. कौन से ईयर में? 1854 में. सो दिस इज अ फैक्ट. देन इनिशियली कहाँ पे फ्लरिश हुई थी ये इंडस्ट्रीज? महाराष्ट्र और गुजरात में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ह्यूमिड क्लाइमेट था विच वॉज वेरी वेरी गुड फॉर क्लोथ्स. ओके, क्लोथ्स इंडस्ट्रीज दे नीड ह्यूमिड काइंड ऑफ क्लाइमेट, इसीलिए आज भी सूरत, अहमदाबाद ये सारे रीजन्स बहुत पॉपुलर हैं. नॉट बिकॉज अहमदाबाद हैज अ ह्यूमिड क्लाइमेट, बट आज हम लोग इसे आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर सकते हैं. पहले क्या था, ये सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, तो महाराष्ट्र एंड गुजरात में नेचुरली बहुत ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिलता था. सो द इंडस्ट्रीज वर सेटल्ड हियर. बट नाउ वी हैव मूव्ड टू वेरियस प्लेसेस बिकॉज वी कैन क्रिएट आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी. अब कैसे क्रिएट करते हैं ये आप साइंस क्लास में पढ़ोगे, ठीक है? ह्यूमिडिटी कैसे क्रिएट करते हैं, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड, यू विल लर्न एज यू move towards the science classes. Coimbatore, Kanpur, Ahmedabad, Ludhiana, Kolkata, Chennai, Panipat in Haryana, these are some of the famous cloth producing centers.
कमिंग टू अहमदाबाद, इसकी लोकेशन कहाँ है तो देखिए ये यहाँ पे है, ये गुजरात रीजन में है। ये कौन सी रिवर बैंक पे सिचुएटेड है? साबरमती रिवर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट मिल इस्टेब्लिश हुई थी आपकी 1859 में। कब हुई थी? 1859 में, ठीक है। और विच प्लेस इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? इट इज अहमदाबाद बिकॉज ऑफ इट्स कॉटन एंड क्लॉथ इंडस्ट्री। क्लॉथ इंडस्ट्री के वजह से अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है एंड इट इज वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरियाज। आज भी अहमदाबाद एक बहुत ही फ्लरिशिंग मार्केट है फॉर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। ओके, ये क्यों फ्लरिश किया? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लेबर अवेलेबिलिटी थी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी यहाँ की अच्छी थी। यहाँ का लैंड जो था, टेरेन जो लैंड था, ये लो लाइंग था और सूटेबल था। क्लाइमेट भी यहाँ का आइडियल रहा है। लेकिन अब इसे बहुत ज्यादा कंपटीशन मिल रही है क्योंकि ये अपने आप को उतना अपग्रेड नहीं कर पाया है। सो इन टुडेज वर्ल्ड देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। इफ यू डोंट कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ देन ऑटोमेटिकली somebody will take over you. Which place is known as the Manchester of India, guys? It is Ahmedabad. Okay. कमिंग टू ओसाका, अब जैसे अहमदाबाद इंडिया के लिए है वैसे ही ओसाका जापान के लिए है। सो दैट इज वाई मैनचेस्टर ऑफ जापान, विच प्लेस इज इट? इट इज ओसाका। क्योंकि जैसे अहमदाबाद में बहुत अच्छी टेक्सटाइल प्रोडक्शन होती है वैसे ही ओसाका इज द टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान एंड दैट इज वाई वी कॉल इट एज मैनचेस्टर ऑफ जापान। यहाँ पे क्या क्या है? वार्म क्लाइमेट है। यहाँ पे भी एक रिवर है, जैसे कि साबरमती रिवर आपको कहाँ देखने को मिली? अहमदाबाद में, ठीक है। क्लाइमेट भी सिमिलर है, वार्म एंड हॉट। लेबर अवेलेबिलिटी भी थी, ठीक है। सेम चीजें यहाँ पे है, इसीलिए ओसाका इज मैनचेस्टर ऑफ जापान एंड अहमदाबाद इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे साबरमती की जगह योडो रिवर है, ठीक है। एंड पोर्ट फैसिलिटी भी है, इससे ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है, प्रोडक्ट्स की सेल आउट इजी हो जाती है। कॉटन यहाँ पे कहाँ से इंपोर्ट किया जाता है? कॉटन इज इंपोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट, इंडिया, चाइना, यूएसए। जनरली आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ देखने को मिलेगी? इंडिया एंड थोड़ी साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे कि वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गई, यहाँ पे आपको कॉटन इंडस्ट्री अच्छी दिखेगी। Although it is an important industry, but now it has been replaced. That means which industry has been replaced? The cotton industry has been replaced by various other industries such as iron and steel, machinery, shipbuilding, automobiles, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड सीमेंट। तो ये सारी इंडस्ट्रीज के डिमांड बढ़ते गए और वो वाली इंडस्ट्री थोड़ा सा पीछे हटती गई। कमिंग टू ऑल ऑफ दिस, अब इंडस्ट्रीज की बात कर ली, वेरियस इंडस्ट्रियल रीजन्स की बात कर लिए, बट इंडस्ट्रीज से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? हैव यू एवर हर्ड ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिजास्टर? हैव यू एवर हर्ड ऑफ अ डिजास्टर? डिजास्टर क्या होता है? सम काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट, ओके, some kind of unfortunate incident. फॉर एग्जाम्पल फ्लड आ गए, लैंडस्लाइड्स आ गई, इनको हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। मैन मेड डिजास्टर क्या होते हैं? मैन मेड डिजास्टर होते हैं डिफॉरेस्टेशन के वजह से, इफ देर इज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट अकर्स। मैन मेड डिजास्टर हो जाते हैं कि कोई इंडस्ट्री में इन्होंने ख्याल नहीं रखा एंड सम काइंड ऑफ ब्लास्ट हैपेंड। मैन मेड डिजास्टर हो जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब्स फोड़ना, ओके, क्योंकि इन्होंने खुद फोड़ा है, इट इज नॉट गिवन बाय नेचर। सो सिमिलरली इंडस्ट्रियल में कभी कभी कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं इंडस्ट्रीज में, जिन्हें हम इंडस्ट्रियल डिजास्टर के नेम से जानते हैं। ये क्यों होते हैं? कभी कभी तो देखो टेक्निकल फेलियर हो जाते हैं। अब इतनी सारी मशीन्स हो जाती है, किसी में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उसके वजह से कोई टेक्निकल फेलियर हो गया, या फिर कोई हजार्डस मटीरियल था, हजार्डस मतलब कुछ डेंजरस मटीरियल था जिसको सेफली हैंडल नहीं किया गया। सो बिकॉज ऑफ दैट नेग्लिजेंसी या केयरलेसनेस क्या होता है? एक डिजास्टर में वो कल्मिनेट हो जाता है। सो दैट इज वाई इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स शुड बी अवॉइडेड। वन एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल डिजास्टर इज, एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर हुआ था भोपाल में, विच इज अ सिटी इन मध्य प्रदेश स्टेट ऑफ इंडिया। 1984 में व्हाट हैड हैपेंड, एक बहुत ही पॉइजनस गैस जिसका नाम है मिथाइल आइसोसायानाइट गैस, मिथाइल आइसोसायानेट गैस, ओके। ये क्या हुआ था? हाइड्रोजन सायानाइड, ये दोनों केमिकल्स के साथ
ये यूनियन कार्बाइड की एक फैक्ट्री थी भोपाल में, यहाँ से लीक हो गई। अब जो रेसिडेंट्स थे, अगल बगल के लोग थे, ये लोग बहुत ही भारी मात्रा में इनकी जान चली गई। ऑलमोस्ट 4000 इज द ऑफिशियल डेथ टोल। तो आप समझ सकते हो कि अनऑफिशियल कितने सारे हैं। और ये सिर्फ डेथ की बात है, आज भी आप उस एरिया में जाओगे तो मेनी पीपल आर हैंडीकैप्ड, दे हैव लॉस्ट देयर आईज, दे हैव लॉस्ट देयर हैंड्स, दे हैव बर्न्ड देयर आईज। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिजास्टर। तो जब हम लोग ये समझते हैं कि इंडस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इकोनॉमी, तो साथ ही साथ ये समझना होता है कि इंडस्ट्रीज के कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिजास्टर अकरेंस, सेकेंड इज द लेवल ऑफ पोल्यूशन दे कॉज। ओके, सो इसी तरीके से हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है। इसी तरीके से चाइना में भी देयर वाज एन इंडस्ट्रियल डिजास्टर इन 2005 एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। इसके रिस्क को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? तो वेयर वी आर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, हम लोग रेसिडेंशियल एरियाज को थोड़ा दूर रखेंगे, कोशिश करेंगे। फायर वार्निंग और फाइटिंग सिस्टम्स को इम्प्रूव करेंगे ताकि अगर कुछ भी ब्रेकआउट होती है तो अलर्ट्स हमें जल्दी मिल जाएं, ताकि हम लोग उस एरिया को इवैक्यूएट कर पाए। हजार्डस सब्सटेंसेस, अगर इंडस्ट्रीज क्लोजली लोकेटेड है रेसिडेंशियल एरिया से, सो वट एवर हजार्डस और डेंजरस मटीरियल दे आर यूजिंग, द पीपल इन एंड अराउंड दैट इंडस्ट्री शुड बी अवेयर ऑफ दैट। ओके, पल्यूशन की डिस्पर्शन क्वालिटीज को इम्प्रूव करना होगा ताकि हमारे वाटर बॉडीज पल्यूट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, somebody goes to wash their clothes in that water, or somebody drinks that water from the water body. If there is some chemical in it, it might cause health harm. Okay, it might cause a lot of harmful effects on the human beings. So this is how we are going to reduce the risk of industrial disasters. With this, we have come to the end of the chapter. I hope I have explained it to you clearly. कुछ भी doubts हो, please do reach out. Thank you for staying connected and listening to us. It is wonderful, coming and teaching you guys. I already feel connected to all of you all without even looking at you. Okay. And for more such videos, you can subscribe to our channel, Success Series Education. Hit the bell icon so that whenever we have a lesson come up, you will have the update for it. I will see you soon with the next set of lessons. Till then, bye-bye. Take care.